Gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Creator of the whole universe, पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, Thou art the King of kings and Lord of lords. आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। Lord, Thou art our Savior. प्रभु आप हमारे उद्धार करता You हैं। gave Thy life for us. आपने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। When we are heading towards, Lord, destruction, You came and sought us and saved us. प्रभु हम तो विनाश के लिए बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन आप आए, हमें ढूंढा और हमें छुटकारा दिया। Thank Thee for the great salvation You have given to us. धन्यवाद देते हैं बड़े छुटकारे के लिए जो आपने हमें दिया। Not only that, Lord, You are going to take us. और प्रभु आप न केवल ये बल्कि आप हमें अपने साथ लेकर भी जाएंगे। We are going to be with Thee forever and ever. हम हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ होंगे। Lively hope, blessed hope You have granted in our lives. प्रभु आपने हमें हमारे जीवन में जीवित आशा दी है। Thank Thee, Lord, You have given this opportunity to come for these special meetings. प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने हमें यह अवसर दिया कि हम इस विशेष सभाओं में आ सकें। Thank Thee for Thy people, You had pity on them. And Lord, You have given this burden to Thy servant and arranged these meetings for Thy people to be prepared for the heavenly kingdom. धन्यवाद देते हैं आपने हम लोगों पर दया दिखाई और हमारे भाई को बोझ दिया इन सभाओं के लिए, ताकि हम आपके आगमन के लिए तैयार हो सकें। Thank Thee, Thy servant brother Isaac, Abraham and sister, they have brought them from Chennai. हमारे भाई अब्राहिम के लिए, उनकी पत्नी के लिए धन्यवाद देते हैं, आप उनको चेन्नई से लेकर आए। Thank and praise Thee the way You are using him here. और धन्यवाद देते हैं जिस रीति से आप उन्हें यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हैं। Since yesterday You have been with us and showing Thy faithfulness in our life. प्रभु आप दिखा रहे हैं किस तरह से आप हमारे मध्य में और अपनी विश्वास योग्यता साबित कर रहे हैं। Oh Lord, these meetings may continue, Lord, gloriously. और प्रभु ये सभाएं वही बड़े महिमित रूप से जारी रहें। Lord, we pray that Thou may control this weather as well as electricity. और प्रभु आपसे प्रार्थना इस मौसम को भी और इस शहर को भी और बिजली को भी आपके नियंत्रण में रखें। Keep Thy angels around us. और हमारे चारों तरफ आपके स्वर्गदूतों को रखें। No untoward incident may happen. और कोई भी ऐसी अलग सी घटना ना घटे। Be with us. हमारे साथ हों। Anoint Thy servant afresh. हमारे भाई को नई रीति से अभिषेक करें। Use him in the midst of us. और उन्हें हमारे बीच में इस्तेमाल करें। Even in family prayer also, Lord, remember. और पारिवारिक प्रार्थना में भी हमें याद रखें। Once again we thank Thee for dear brother Mehtab. और एक बार फिर हमारे भाई मेहताब के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Lord, in Thy providence, You have united our dear sister and Mehtab, wife and husband, and blessed him, and You have really protected for 49 years as a married life. और प्रभु आपने हमारे भाई को और हमारी बहन का विवाह किया और पिछले 49 सालों तक आपने जोड़ के रखा। This is only by Thy grace. ये सब आपके अनुग्रह के कारण ही You है। have blessed him with the children and grandchildren. आपने उन्हें बच्चों से और नाती पोतों से आशीष दी। Thank Thee, You have kept him in the ministry also. और धन्यवाद देते हैं आपने उन्हें सेवकाई में भी रखा। Lord, bless him. आप उनको आशीष Bless दें his प्रभु, family. उसके परिवार को आशीष दें। We are grateful to Thee because You have preserved for all these 49 years of married life. और प्रभु हम आपके बड़े आभारी हैं इन पिछले सारे 49 सालों तक विवाहित जीवन में आप उनके साथ बने रहे। This time remember Joshi's father Prasad. Lord, touch him and heal him. और हमारे भाई प्रसाद को याद करते हैं, उन्हें छुएं और चंगा करें। Those who are sick and suffering, Lord, touch them and heal them. जो अभी बीमार हैं प्रभु आप उनको छुएं और चंगा करें। You be in our midst according to Thy word, Matthew's Gospel 18:20. मत्ती 18:20 के मुताबिक, आपके वचन के मुताबिक आप हमारे मध्य में रहें। Lord, without Thee we can do nothing. प्रभु आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। Lord, open heavens may be granted to us. और प्रभु हमारे लिए स्वर्ग खुल जाए। Lord, we pray for brother Martin. He is not well. Touch him and heal him. हमारा भाई मार्टिन सही नहीं है, प्रभु आप उनको भी छुए और चंगा करें। So that he may be useful in the ministry. और ताकि वो सेवकाई में बड़ा लाभदायक हो। Remember his family also. उनके परिवार को भी याद करते हैं। We commit ourselves, binding all the power of darkness with the faith. We pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए और अंधकार की सारी ताकतों को और विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांधते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन। Song number 705. गीत नंबर 705।
प्रति सावधान रहो, जागते रहो, ऐसा ना हो जो कमाए जवान, ऐसा ना हो जो कमाए जवान। स्वर्ग में तुम्हें विजय से प्रवेश करना है, स्वर्ग में तुम्हें विजय से प्रवेश करना है। प्रतिफल पूरा प्रभु से प्राप्त करना है, प्रतिफल पूरा प्रभु से प्राप्त करना है। अपने प्रति सावधान रहो, जागते रहो, ऐसा ना हो जो कमाए जवान, ऐसा ना हो जो कमाए जवान। मसीह यीशु को ग्रहण करके उसमें चलना है, मसीह यीशु को ग्रहण करके उसमें चलना है, और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाना है, और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाना है। अपने प्रति सावधान रहो, जागते रहो, ऐसा ना हो जो कमाए जवान, ऐसा ना हो जो कमाए जवान। इस संसार के लालच से तुम्हें बच के जीना है, इस संसार के लालच से तुम्हें बच के जीना है। प्रभु की इच्छा जानकर उसमें बन के रहना है, प्रभु की इच्छा जानकर उसमें बन के रहना है। अपने प्रति सावधान रहो, जागते रहो, ऐसा ना हो जो कमाए जवान, ऐसा ना हो जो कमाए जवान। आत्मिक दौड़ में धीरज के साथ दौड़ना है, आत्मिक दौड़ में धीरज के साथ दौड़ना है। यीशु की ओर ताकते आगे आगे बढ़ना है, यीशु की ओर ताकते आगे आगे बढ़ना है। अपने प्रति सावधान रहो, जागते रहो, ऐसा ना हो जो कमाए जवान, ऐसा ना हो जो कमाए जवान। हरदम अपनी चिंताओं को बीच में डालना है, हरदम अपनी चिंताओं को बीच में डालना है, क्योंकि वो सदा तुम्हारी चिंता करना है, क्योंकि वो सदा तुम्हारी चिंता करना है। अपने प्रति सावधान रहो, जागते रहो, ऐसा ना हो जो कमाए जवान, ऐसा ना हो जो कमाए जवान। बहुत ही शीघ्र प्रभु यीशु आने वाला है,
to all of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको ग्रीटिंग्स। For this evening prayer meeting, और आज शाम प्रार्थना सभा में let us turn to Psalm 26. आइए हम देखें भजन 26। Psalm 26, we read all the chapter alternatively. हम भजन 26 बारी बारी से पढ़ेंगे, पूरा अध्याय पढ़ेंगे। Judge me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। For thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. मैं निकम्मी चाल चलन चलने वालों के संग नहीं बैठा, और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। I have hated the congregation of evildoers, and will not sit with the wicked. मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। That I may publish with the voice of thanksgiving and tell all of thy wondrous works. हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men. वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। But as for me, I will walk in my integrity. Redeem me and be merciful unto me. मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। Let us look unto the Lord in prayer, please. आइए हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें। Our most gracious, loving Heavenly Father, हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, God of grace, mercy and peace, दया अनुग्रह और शांति के परमेश्वर, and the God who loved us with an everlasting love. और वो परमेश्वर जिसने हमसे अनंत काल के प्यार से प्यार किया। We thank the Lord for this blessed privilege granted to us this evening. और प्रभु इस शाम के समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया। And about a promise giving and promise fulfilling God. आप कैसे प्रतिज्ञाओं को बांधने वाले, उन्हें पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। Thou art our loving Savior, which keepeth His Spirit with us always. और आप कैसे प्यार करने वाले प्रभु हैं जो अपना आत्मा हमारे साथ रखते हैं। Thank the Lord for keeping the Spirit and guidance with us since morning. और धन्यवाद देते हैं सुबह से आपका आत्मा हमारी अगुवाई करता रहा है। Thank the Lord for using the servants and encouraging us, strengthening us in the spiritual ways. और धन्यवाद देते हैं आपके दासों को इस्तेमाल करने के लिए और हमारी हिम्मत को आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए। At the end of this evening, we once again come into Thy presence. और इस शाम को एक बार फिर आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lead us, guide us, प्रभु आप हमारी अगुवाई करें and strengthen us by Thy presence, और अपनी उपस्थिति से हमारी हिम्मत को बढ़ाएं, so that we may continue to walk in Thy ways more perfectly. ताकि हम बड़ी सिद्धता से आपके मार्गों में चलते रहें। Unworthy as we are, जब हम अयोग्य हैं, we seek Thy guidance. हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। Lord, help us. प्रभु आप हमारी सहायता करें। As we pray in the name of Lord and Savior Jesus Christ. जब हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Lord has been helping us all these 2 days प्रभु इन 2 दिनों में हमारी सहायता कर रहा है। in using His chosen vessels. वो अपने चुने पात्रों का इस्तेमाल कर He रहा has है been keeping us nearer unto Him. और हमें अपने नज़दीक रख रहा है। And this is a psalm of David. और ये दाऊद का भजन है। And by saying that, he says he was blameless. और वो कहता है कि वो निर्दोष है। David was not claiming to be sinless. दाऊद इस बात का दावा नहीं कर रहा है कि वो पाप रहित है। That it is impossible for any human being to achieve. और ये तो किसी भी मनुष्य के लिए हासिल करना असंभव है। And nobody can ever say that I am not sin. Sin. और कोई भी ये नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया। You can be blameless, वो निर्दोष हो सकता है, but you cannot be sinless. लेकिन वो निष्पाप नहीं हो सकता। And that is what is explained in this psalm. और यही बात हम यहाँ पे पाते हैं। He says in the first verse, वो पहली आयत में कहता है, Judge me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have trusted also in the Lord. Before I shall not slide. वो कहता है, हे Therefore यहोवा, I shall not slide. हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। And we know about the life of David. और हम दाऊद के जीवन के बारे में जानते हैं। Even from the very childhood.
और बचपन से He was chosen by God. वो परमेश्वर का चुना हुआ And he था was led by God. और परमेश्वर की अगुवाई थी उसके साथ। And God's presence was an integral part of David's life. और परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद के जीवन का एक अभिन्न भाग था। So he was one man, God called him, he was after my own heart. और वो व्यक्ति था जिसके बारे में परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति A है। great testimony. एक बड़ी गवाही God saying that he is after my own heart. कि परमेश्वर कह रहा है ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति But है। in spite of certain situations, लेकिन इन कुछ परिस्थितियों के बावजूद though God loves us, यद्यपि परमेश्वर उसको प्यार करता है, because we live in this world क्योंकि हम इस दुनिया में जीते हैं and we fall prey sometimes to the evil designs. और हम कई बार दुष्ट योजनाओं में दुष्ट युक्तियों में फंस जाते हैं। That's where God speaks to us through his word. और वहाँ पर परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। He says, judge me, O Lord. वो कहता है मेरा न्याय कर। And second verse, he says, examine me. और दूसरी आयत में कहता है हे यहोवा मुझको जांच ले। Examine me, Lord. Prove me, try me, reins in my heart. और वो कहते हैं हे यहोवा मुझको जांच और परख ले और मेरे मन और हृदय को परख। So let us also see Proverbs 27. नीति वचन 20 अध्याय उसकी 7वीं आयत में। Proverbs chapter 20 verse 7. नीति वचन 20 अध्याय उसकी 7वीं It आयत। says, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। As we meditate upon the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते we हैं go across different situations, विभिन्न परिस्थितियों में, but we always find the Lord standing beside us. हम देखते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर को हमारे साथ खड़ा हुआ देखते Though हैं। many times we fail him, यद्यपि कई बार हम विश्वासघात कर देते हैं उसके but साथ, he is always loving and faithful towards us. लेकिन वो हमेशा हमारे साथ विश्वास योग्य और प्रेम करता हुआ रहता That's है। how we have been led by his Spirit every day. और इसी तरह से परमेश्वर का आत्मा हर रोज हमारी अगुवाई करता And है he is a God, in spite of all our weaknesses, he keeps his presence with us. और वो हमारा परमेश्वर बना रहता है और अपनी उपस्थिति को हमेशा हमारे साथ रखता And है he leads us in his ways. और वो अपने मार्गों में हमें लिए चलता And है। third verse we see तीसरी आयत में हम देखते हैं Psalm 26. भजन 26, For the loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thine truth. क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। And David, as a faithful man, he was always been mindful of God's presence in his life. और दाऊद विश्वास योग्य पुरुष था और वो हमेशा परमेश्वर की चितौनियों को ध्यान में रखता We था। also see what is written in 2 Kings 20 verse 3. दूसरा राजा उसकी 20 अध्याय उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? 2 Kings दूसरा राजा 20 verse 3. 20 अध्याय और उसकी तीसरी आयत, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart. वो कह रहा है मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं बड़ी सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। That's wonderful support. ये अद्भुत सहारा है। Great strength in your life. ये आपके जीवन में बड़ी सामर्थ्य का काम करता We है। also can ask God when we follow him. और जब हम गिरते हैं तो हम परमेश्वर से मांगते हैं। When we experience his presence always in our lives, और जब हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते we हैं have the privilege to look up unto him in every situation. और हमारे पास ये आदर है कि हम हर परिस्थिति में उसकी ओर देखें। We have the freedom to ask him, Lord, forgive our shortcomings. हमारे पास ये पूरी आज़ादी होती है कि हम प्रभु से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। Though we claim him as our savior, यद्यपि हम उसको अपना उद्धारकर्ता मानते many हैं, times we fall into weaknesses, spiritual weaknesses. कई बार हमारे में आत्मिक कमजोरियां होती हैं, But God is loving towards us. लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करता रहता He है। has given us a privilege उसने हमें ये आदर दिया है that any time we can go unto him कि कभी भी हम उसके पास जा सकते and हैं ask God to examine us और परमेश्वर से बोल सकते हैं प्रभु मुझे जांच ले and forgive our shortcomings, और मेरी कमियों को माफ कर दे, forgive our fallen nature, मेरे गिरे हुए स्वभाव को माफ कर दे and immediately we may be restored unto him. और एकदम से वो हमें दोबारा से
हम दोबारा से उसके साथ जुड़ जाते हैं। Coming back to Psalm 26, और 26वें अध्याय में 26 भजन 26 में वापस आते 2 हुए verses 4 and 5. चौथी और पांचवी आयत में, I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers. मैं निकम्मी चाल चलन चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। I have hated the congregation of evildoers and will not sit with the wicked. मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। And all the Christian families, as the children coming from the children who come from the Christian background, वो बच्चे जो मसीह पृष्ठभूमि से आते हैं and they by heart this was the first psalm. और वो भजन पहले एक को याद रख कर लेते हैं। Now we read few verses from this first psalm. और भजन एक से हम कुछ आयतों को पढ़ते You see, हैं। blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। But his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। So this he taught us. और वो ये हमें सिखाता है। As we follow him, जब हम उसके पीछे पीछे जाते हैं, as we claim him as our savior, जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं and trust him, he always, as he follows us, और जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं और हम उसके पीछे पीछे चलते we हैं, remember these two verses. हम इन दो आयतों को याद करते हैं। Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। In reality, actually, his ways will properly protect us in this world. और सच्चाई में तो वास्तविकता में तो उसके मार्ग इस संसार में सुरक्षित होंगे। And also we experience और ये साथ में ये भी अनुभव करेंगे our delight is in the law of the Lord. और हमारा आनंद परमेश्वर की व्यवस्था में बना रहता है। And in his law doth me meditate day and night. और उसकी व्यवस्था में दिन रात ध्यान करता This is रहता a है। privilege God has given to us. ये परमेश्वर ने हमें दिया है। In 4 and 5 verses we saw just now. चौथी और पांचवी आयत हमने अभी देखी। He keeps his spirit with us. वो अपना आत्मा हमारे साथ बना के He रखता है, protects us. वो हमारी रक्षा करता है And he leads us and he guides us. और वो हमारी अगुवाई करता है And he always stands beside us. और वो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। That is why we praise him. इसलिए हम उसकी स्तुति करते Our हैं। hearts are filled with his love. हमारा दिल उसके प्यार से भरा रहता है And he strengthens us when we walk in his ways. और जब हम उसके मार्गों में चलते हैं तो वो हमें सामर्थी बनाता And he है। prepares us for his kingdom. वो हमें अपने राज्य के लिए तैयार करता है। John's Gospel, and also one thing we remember, और एक बात और हम याद करते हैं, when he is writing this psalm, David, जब दाऊद इस भजन को लिख रहा है, he talks about many aspects. We are not going through it. वो बहुत सारी बातों के बारे में बताता है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे। But some important things is, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें, there are certain teachings here. यहाँ पे कुछ शिक्षाएं हैं। Where says sometimes we discuss. कई बार हम बातचीत करते हैं Which type of people we have fellowship with. हम किस तरह के लोग के साथ संगति करते हैं। Many people talk about different ways. बहुत सारे लोग अलग अलग मार्गों के बारे में बात करते But it हैं, is clear, लेकिन बड़ा साफ है, Jesus himself went to the sinners. यीशु खुद पापियों के पास गया, Not to have fellowship with them, उनके साथ not to have fellowship, उनके साथ संगति करने के लिए but to नहीं, save them. बल्कि उनको बचाने के लिए, Save them from the sinful activities. उनको पाप से बचाने के लिए And to show them the right way. और उनको सही मार्ग दिखाने के The लिए, way the Lord has prepared for us. और वो मार्ग जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया You है। see, in John's Gospel, chapter 4, verse 4, यूहन्ना 4:4 में हम देखते हैं, very promise verse here. जहाँ पे वो बताता है, John's Gospel, chapter 4, verse 4. यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 4 आयत, And I like this verse very much. और मुझे ये आयत बहुत पसंद है। John's Gospel, chapter 4, verse 4. और यूहन्ना 4 उसकी 4 आयत, And he must needs go through Samaria. और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। Very powerful sentence. बड़ा सामर्थी वाक्य He है, was a Jew, क्यों वो यहूदी था and as for the systems, Jews will not enter into the places of Samaritans. और यहूदी होने के नाते यहूदी सामरियों के इलाकों में नहीं जाते, They do not have any relation with them.
और वो उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते। Even they have to go crossing Samaria, और जब वो समारिया के उस पार जाना होता था, but they go around Samaria, but they will not enter into वो Samaria. सामरिया का चक्कर लगा के जाते थे, लेकिन सामरिया में से होकर नहीं जाते But थे। in our Savior, when he loved as he loved everybody, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता जब उसने सबको प्यार किया, on that particular day, उस दिन to save a Samaritan woman, एक सामरी स्त्री को बचाने के लिए, just one person, सिर्फ एक व्यक्ति को, our Savior, हमारा उद्धारकर्ता, is what is written it here, यहाँ पे क्या लिखा है, and he must needs go through Samaria. और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। That's the wonderful purposes of God in our lives. ये परमेश्वर के बड़े अद्भुत योजनाएं हैं हमारे Even जीवन we में। are unworthy people. हम भी अयोग्य लोग हैं। One day we were not knowing him. एक दिन हम उसको नहीं जानते थे, We were living in ignorance. हम अज्ञानता में जी रहे थे, But God has appointed a day for all of our lives. लेकिन परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए एक दिन नियुक्त किया। When I look back, और मैं जब पीछे मुड़ के देखता when I हूँ, was doing my intermediate, that's 12th class in Hyderabad, जब मैं हैदराबाद में 12वीं कक्षा कर रहा God has था, appointed a day for me. परमेश्वर ने मेरे लिए एक दिन नियुक्त किया था। Though I come from a very rigid Christian background, यद्यपि मैं एक बड़े कट्टरवादी मसीह परिवार से आया था, I did not experience the closeness of God in my life. लेकिन मैं अपने जीवन में मसीह की करीब समीपता को नहीं But महसूस God करता did था। not leave me. लेकिन परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। He appointed a day, a time in my life. उसने मेरे जीवन में एक दिन और एक समय नियुक्त He किया, had a great purpose to save me. और उसकी बड़ी योजना थी मेरा उद्धार करने So के on लिए। that particular day, और उस दिन on that particular time, और उस विशेष समय I में was led to a place और मुझे उस जगह पे ले गया, where he appointed a God servant जहाँ पे उसने एक परमेश्वर के दास को नियुक्त किया to हुआ speak था। to me. उसने मुझसे बात Yes, करी, wonderfully, all these things come into conclusion. और बड़े अद्भुत रीति से, और आखिर में क्या हुआ, God had so much of love towards me. और परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्यार किया, He did not want that I should be perishing, और उसने नहीं चाहा कि मैं नाश हो जाऊं, but I should be saved by His grace. बल्कि मैं उसके अनुग्रह से बच जाऊं। Yeah, that's one. 1 John 1:9. ये है पहला यूहन्ना 1:9। Through that verse I was saved. उस आयत के द्वारा मेरा उद्धार हुआ। Read, brother. 1 John 1:9. पहला यूहन्ना 1:9। If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। And the verse which led it there is, जी, verse which led me there is, और जो आयत मुझे यहाँ तक ले गई वो ये है, that was 6th verse. और वो छठी आयत थी। If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not do the truth. यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी उसके साथ सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। There I was caught. यहाँ पे मैं पकड़ा गया, My intelligence, my wisdom did not work there. यहाँ पे मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, I simply had to confess. मुझे मानना ही पड़ा अपने पापों So को। God has purposes in our lives. तो परमेश्वर की योजनाएं होती है हमारे जीवन And में, every time He fixes for us. और Every time is fixed for us. हमारे लिए हर एक समय नियुक्त है। When a boy is to be born in a Christian background, और कब एक लड़के का जन्म होगा मसीह परिवेश and में, where he will grow. और कहाँ पर वो पाला पोसा What जाएगा, time he accepts his Lord and Savior. और किस समय में वो अपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता And करके how ग्रहण he करेगा, totally surrenders his life unto me. और कब वो अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर So देगा। these 2 days God has spoken to us through many verses. और इन 2 दिनों में परमेश्वर ने हमसे कई आयतों से बात करी, Great truths from the word are revealed to us. और परमेश्वर के वचन से बड़ी सच्चाइयां हम पर प्रकट हुई, And God uses His servants very mightily. और परमेश्वर अपने दासों को बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता है। In spite of all these facilities, इन सब सुविधाओं के बावजूद we fall. हम गिर जाते हैं, That's where we have to be worrying about. और हमें यहीं पर चिंता करनी बात David है। was called a man after his own heart. दाऊद को परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार का व्यक्ति बोला, But when you go to 2 Samuel, लेकिन जब वो हम दूसरे सैमुएल में देखते हैं, chapter 11, 11वें उसके दूसरे सैमुएल के 11वें अध्याय में, David had misplaced priorities in his life. दाऊद के जीवन में प्राथमिकताएं उल्टी हुई थीं। A man who was after God certified him as a man
after mine own heart. वो व्यक्ति जिसके बारे में परमेश्वर की गवाही थी कि ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है, That great king had misplaced priorities. उसके उस बड़े राजा के जीवन में गलत प्राथमिकताएं थीं। Why I wanted to remind ourselves is, मैं अपने आप को क्या याद दिलाना चाहता in हूँ, spite of our strong belief, आप हमारे मजबूत विश्वास के in बावजूद spite of many great spiritual facilities we have, और बड़े आत्मिक लाभ के बावजूद, there can be a possibility that we may fall. और ये संभव है कि हम गिर जाएं। And what is it? We see here in 11th chapter of 2 Samuel, और यहाँ पर क्या है, दूसरा शमूएल 11वें अध्याय the में last portion of the first verse. पहली आयत का आखिरी हिस्सा, Or we can read the whole verse. और पूरी आयत पढ़ सकते And हैं। it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। He forgot the priorities in his life. वो अपने जीवन में प्राथमिकताओं को भूल गया। When we start forgetting his priorities, जब हम अपने जीवन में प्राथमिकताओं को भूल जाते or हैं not respecting his instructions in our lives, और या फिर अपने जीवन में उसके निर्देशों का आदर नहीं करते, we fall into sin. हम पाप में गिर जाते He, हैं। instead of going along with the वो सेना के साथ जाने के बावजूद he tarried at Jerusalem. वो यरूशलेम में ही रुक गया। Because he tarried at Jerusalem, not only that, ना केवल वो यरूशलेम में रुक second गया, verse says, बल्कि and it came to pass in an evening tide, David arose from his bed. और शाम के समय में दाऊद अपने बिस्तर से उठा। It are natural things. ये एक स्वाभाविक सी बात है। Who will get up from the bed in the evenings? और कौन शाम के समय अपने बिस्तर से उठेगा? So he did not go along with the army, वो फौज के साथ नहीं गया and he was sleeping all the day. और वो पूरे दिन सोता रहा, And great sin entered into his life. और उसके जीवन में एक बड़ा पाप दाखिल कर So गया। as his children, और उसके संतान होने के as नाते, his followers, उसके पीछे पीछे चलने के वाले लोगों के as नाते, loved by God, और जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, we ought to be very careful about our sin. हम अपने जीवन के बारे में बड़े सावधान रहे। So we know afterwards what all happened, हमें मालूम है आगे सब क्या हुआ, but we should be having the priorities in our control. लेकिन हमारे लिए हमारी प्राथमिकताएं हमारे नियंत्रण में हैं। As a child of God, what should be my talking? परमेश्वर की संतान होने के नाते मैं किस To रीति से whom I बात can करूं, have fellowship with. किसके साथ मैं संगति करूं, For every sentence I should put as a child of God. और हर एक वाक्य के साथ लिखें परमेश्वर की संतान होने के नाते, A chosen boy, a chosen girl of God. एक परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई स्त्री, चुनी हुई लड़के या चुनी हुई लड़की God के has नाते। many plans and purposes for us. परमेश्वर की बड़ी योजनाएं हैं हमारे लिए, And these are the times God's children come and encourage us, strengthen us and correct us through the word of God. और ये वो समय है जब परमेश्वर के दास आते हैं और हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं, हमें ठीक करते हैं। Yeah. And we go and preach the gospel to people. और हम लोगों को जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं। Many times, कई बार unusual questions we need to answer. और कई बार बेतुके सवालों का जवाब हमें देना पड़ता है, But our responsibility is लेकिन हमारी जिम्मेदारी है the joy which we received from our Lord वो आनंद जिसे हमें हमारे प्रभु से मिला, should be spreading to others. और वो आनंद दूसरों तक जाए। So when as more we attach ourselves with the Lord, तो हम जितना ज़्यादा अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे and the more opportunities God grants us, और जितना ज़्यादा परमेश्वर हमें मौका देगा, the more in a more wonderful way He uses us. और बड़े अद्भुत रीति से और ज़्यादा वो हमें So with इस्तेमाल these few करेगा। thoughts we end this one, और इन विचारों के साथ हम अंत करते हैं, and remembering और याद करते we हुए, have a God always He keeps His Spirit with us. और हमारे पास वो परमेश्वर है जिसका आत्मा निरंतर हमारे साथ बना So रहता may है। Allah bless this word परमेश्वर इस वचन पर आशीष and दे, continue to speak us and strengthen us. और हमें निरंतर हमारी हिम्मत को बढ़ाता रहे, हमें सामर्थ्य से भरता And रहे, we continue to grow in His grace. और हम निरंतर उसके अनुग्रह में बढ़ते रहे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father,
हमारे स्वर्गीय प्रेमी प्रभु our gracious and wonder working God. हमारे अनुग्रहकारी और अद्भुत काम करने वाले We परमेश्वर, thank Thee for the wonderful time Thou hast given unto us since morning. और प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हमें दिया, Thank Thee for all the word released these 2 days, Friday and Saturday. और इन 2 दिनों के लिए शुक्रवार और शनिवार के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। We are grateful to Thee for Thou art the true and the living God. That is why You are speaking unto us. और प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने बड़े अद्भुत रीति से बड़ी सामर्थ्य के साथ हमारे सामने प्रचार किया, Even tomorrow's ministry also we commit it into Thy loving hand. और कल को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। Even tomorrow Thy word may be released from Thy heavenly throne. और प्रभु कल भी आपका वचन आपके स्वर्गीय सिंहासन से हमारे पास आए, Enable us to worship Thee in spirit and in truth. और हमारी सहायता करें कि हम आत्मा सच्चाई में आपकी आराधना कर Enable us सकें, to take part in Thy table worthily. और हमारी सहायता करें कि हम आपकी मेज में योग्य रीति से हिस्सा ले And सकें। also prepare our hearts to listen to Thy word and abide Thy word. प्रभु हमारे हृदय को भी तैयार करें कि हम आपके वचन को सुन सके और आपके वचन में बने रहें। Thank Thee for all those who would come for today's meetings. Those who could not come, give them their personal blessing also. धन्यवाद देते हैं जो आज आए और जो नहीं आए उन पर भी आशीष दें, Oh Lord, continue to speak to us. और प्रभु हमसे निरंतर बात करते रहे, And thus prepare us for the coming of the Lord Jesus Christ. और हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। Pray with thanksgiving in Jesus' precious name. यीशु के बेशकीमती नाम में ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते हैं, Amen. आमीन। Now may the grace of our Lord and our Savior Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.